Hello guys, in the last lecture we have discussed about the governors, what are governors, where the governors are used, and also we have discussed about the types of governors, that is centrifugal governors and inertia governors. Centrifugal governors works on the centrifugal forces, whereas inertia governors works on the inertia forces. And from the point of your syllabus, you have only about the centrifugal governors. So in the last lecture we have also discussed about the working of the centrifugal governors, how the centrifugal governors works. We have discussed in detail in the last lecture. So now we shall discuss about the types of centrifugal governors. So there are many types of centrifugal governors are there. It means centrifugal governors are classified into many types based on the arrangement. Okay, so but we shall discuss one by one, but in this lecture we are going to discuss about Porter governor, and we are going to discuss about the derivation on the Porter governor. So here now we shall discuss about the types of governors. So types of centrifugal governors. So here there is a Watt governor. This is the first governor introduced by the scientist named as Watt. So he introduced the first governor. So that governor we called as a Watt governor. So this is what the arrangement of the Watt governor. So here you can see that these are the upper arms, okay, and these are the lower arms, you can say, or we can also call these are the links, and in between the upper arms and lower arms there are the fly balls or governor balls, okay, and here upper arms are connected to the sleeve. So actually this diagram is a line diagram of the Watt governor. So here these upper arms are connected or pivoted to the spindle, okay, and here these lower arms or the links are connected to the sleeve, okay. So this is the spindle and these are the fly balls. So this type of arrangement of the governor we call it as a Watt governor, and this governor was introduced by the scientist named as Watt. So this is the first governor, okay, and from the point of your syllabus you are having the Porter governor, the details about the Porter governor. So Porter governor is also same as the Watt governor, and Porter governor is the modification of the Watt governor. मतलब पोर्टर गवर्नर जो है नी वैट गवर्नर का मॉडिफिकेशन है, मतलब पोर्टर गवर्नर जो है नी वैट गवर्नर के जैसे ही रहेगा, सेम अरेंजमेंट रहेगा. पोर्टर गवर्नर में जो है ना some weights are attached, some weights are applied on this sleeve to increase the performance of the governor. Only the difference between Watt governor and the Porter governor is some weights are applied, some weights are attached to the sleeve to increase the performance of the governor, okay. This is the arrangement of the Porter governor, okay. Here you can see the अरेंजमेंट ऑफ दी पोर्टर गवर्नर. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एज दी वैट गवर्नर. यहाँ पे भी दो आर्म्स है, ओके, एंड दीज अपर आर्म्स आर कनेक्टेड टू दी स्पिंडल at this point or pivoted at this point, and next lower arms or you can say links, these are attached to the sleeve, here, okay, and these are the fly balls between the upper arms and the lower arms. So here we can observe that there is a central load W on the sleeve, सो जब यहाँ पे स्लीव पे सब जो कुछ लोड अप्लाई कर देते हैं वैट गवर्नर में स्लीव पे कुछ लोड अप्लाई करते हैं, स्लीव पे कुछ लोड अटैच कर देते हैं, तो वो पोर्टर गवर्नर बन जाता है. तो हियर यू कैन सी दैट सेंट्रल लोड इज अप्लाइड ऑन द स्लीव. सो दिस अरेंजमेंट वी कॉल्ड एज ए पोर्टर गवर्नर. एंड सो हियर we are going to discuss about the derivation
of the Porter governor. Means we are going to find out the relation between speed of the governor, height of the governor, okay, and radius of the governor. So here in this lecture, before going to discuss about the derivation, so we shall discuss about how to resolve the forces. Okay, यहाँ पे resolving of the forces we have to discuss, because when some forces are acting at some angle, so we have to resolve the forces. Okay, जब कुछ forces जो है ना एंगल पे एक्ट करते हैं तो वो फोर्स जो है ना वर्टिकल भी अफेक्ट करते रहता है, हॉरिजॉन्टल भी अफेक्ट करता है. वो कैसे करता है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो रिजॉल्विंग ऑफ द फोर्सेस वो जो कॉन्सेप्ट है ना हम डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं. सो नो वी शैल डिस्कस अबाउट द रिजॉल्विंग ऑफ द फोर्सेस. रिजॉल्विंग ऑफ द फोर्सेस, रिजॉल्विंग ऑफ द फोर्स. यहाँ पे देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स F जो है नहीं कुछ एंगल वर्टिकल एक्सिस पे कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है, कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फोर्स जो है नहीं कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है तो इसका जो ये फोर्स का जो इफेक्ट है ना वर्टिकल भी रहेगा और हॉरिजॉन्टल भी इफेक्ट रहेगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये जो फोर्स जो है नहीं हॉरिजॉन्टल भी इफेक्ट करेगा इस पॉइंट पे और वर्टिकली भी इफेक्ट करेगा. तो यहाँ पे देखो ये फोर्स F जो है नी कुछ एंगल पे बीटा एंगल पे वर्टिकल ये फोर्स जो है नी बीटा एंगल बनाया हुआ है वर्टिकल लाइन पे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फोर्स जो है नी वर्टिकली कितना इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं बोले तो फोर्स ये जो फोर्स है ना एंगल पे ये फोर्स यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे देखो ये फोर्स जो है नी ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना हुआ है. ये फोर्स जो है नी ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बनाया है. कितना एंगल बनाया है, बीटा, तो इसको कॉस बीटा. आर यू गेटिंग? तो इसको ये होगा, ये जो है नी ये फोर्स जो है नी वर्टिकली इतना इफेक्ट कर रहा है कॉस F कॉस बीटा. ठीक है, और ये फोर्स जो है नी हॉरिजॉन्टल भी इफेक्ट करते रहा इस पॉइंट पे. वो कितना है बोले तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है या हॉरिजॉन्टल फोर्स का डायरेक्शन निकालना है. ठीक है, ये फोर्स जो है ना हॉरिजॉन्टली कितना इफेक्ट कर रहा है बोले तो ये जो बीटा एंगल वर्टिकल साथ बनाया है इसके साथ बनाया, तो ये जो है ना ये फोर्स एज इट इज़ लिखना है F. यहाँ पे एंगल आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पे साइन लेना है, साइन फंक्शन लेना है. और ये जो वर्टिकल ये जो एंगल आपको जो मालूम रहता है ना उसको बीटा करके लिखना है. यहाँ पे एंगल आपको मालूम नहीं है तो इसलिए आपको यहाँ पे साइन फंक्शन लेना है और ये एंगल जो है ना यही लिखना है. जो आपको एंगल मालूम रहता है वही एंगल लिखना है. तो और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, और एक एग्जांपल लेता हूँ. यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ये पॉइंट लेता हूँ. यहाँ पे देखो ये फोर्स जो है नी 45 न्यूटन एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इस अभी ये देखो कुछ यहाँ पे देखो मैं अगर यहाँ पे एक लाइन वर्टिकल लाइन लेता हूँ, जस्ट इमेजिनरी लाइन. यहाँ पे देखो ये वर्टिकल लाइन के साथ जो है ना अल्फ़ा एंगल बना के एक्ट कर रहा है. मतलब ये 45 न्यूटन जो है नी अल्फ़ा के साथ वर्टिकल एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बनाया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 45 न्यूटन जो है ना ये वर्टिकली भी इफेक्ट करेगा इस पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टली भी इफेक्ट करेगा इस पॉइंट पे. तो वर्टिकली कितना इफेक्ट करेगा वो हमको कैसे मालूम करना है बोले तो यहाँ पे देखो ये वर्टिकल लाइन निकालना है, इस पॉइंट पे ही वर्टिकल लाइन निकालना है. ठीक है, 45 न्यूटन है तो ये 45 लिख दो. यहाँ पे देखो ये 45 न्यूटन जो है ना वर्टिकल लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल बनाया है. तो इसके साथ एंगल मालूम है आपको, ये जो फोर्स जो है ना वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है मालूम है, तो इसको आप कॉस फंक्शन लिखना है. ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा करके लिख दो. सिमिलरली अभी हॉरिजॉन्टल ये 45 न्यूटन जो भी है ना हॉरिजॉन्टल भी इफेक्ट करेगा ऐसे. तो कितना इफेक्ट कर रहा है, फोर्स
45 लिख दो। यहाँ पे आपको एंगल मालूम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे साइन लिख दो यहाँ पे। मगर ये जो फोर्स जो है ना वर्टिकल के साथ एक्सिस के साथ कितना बनाया एंगल अल्फ़ा, तो यहाँ पे एंगल अल्फ़ा लिख दो। जिसके साथ एंगल मालूम नहीं रहेगा ना तो उसको वहाँ पे साइन फंक्शन लेना। जिस एक्सिस के साथ जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाया रहता है ना वहाँ पे कॉस फंक्शन लेना है। और एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे मैं। ये लो 50 न्यूटन जो है नी, यहाँ पे आपको 50 न्यूटन जो है ना यहाँ पे कुछ एंगल बीटा के साथ एंगल बीटा बना के हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्ट कर रहा है। ये जो 50 न्यूटन जो है इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और ये फोर्स जो है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बीटा एंगल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये फोर्स जो है ना कैसे रिजॉल्व करना है, मतलब ये फोर्स जो है वर्टिकली कितना अफेक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली कितना अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये फोर्स जो है ना पहले वर्टिकली देखेंगे 50 एज इट इज़ लिखो। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको एंगल मालूम नहीं है। ये फोर्स जो है ना ये वर्टिकल एक्सिस के साथ वर्टिकल कंपोनेंट के साथ एंगल मालूम नहीं है तो यहाँ पे आपको साइन लिखना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल यहाँ पे दिया हुआ है तो ये एंगल बीटा यहाँ पे लिखना है। जिसका एंगल जिस एक्सिस के साथ जिस कंपोनेंट के साथ एंगल मालूम नहीं रहता ना वहाँ पे साइन फंक्शन लेना है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टली आओ। हॉरिजॉन्टली देखो 50 फोर्स लिख दो। यहाँ पे देखो 50 जो है नी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना है तो यहाँ पे कॉस लिखना है, कॉस बीटा। जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहता ना वहाँ पे कॉस फंक्शन यूज़ करना है। जिस एक्सिस पे एंगल मालूम नहीं रहता ना वहाँ पे साइन फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा डिटेल में देख लो। ओके, सो now we shall discuss about the derivation. So here I will consider this Porter governor. Here I am considering this Porter governor. Okay, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये ओनली यहाँ पे ओनली हाफ सेक्शन ऑफ द पोर्टर गवर्नर आई एम कंसिडरिंग। यहाँ पे सिर्फ हाफ सेक्शन यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो लाइन डायग्राम बना हुआ है ये हाफ सेक्शन का गवर्नर है। ये जो लाइन डायग्राम जो है ये डायग्राम का हाफ सेक्शन है, मतलब ये लेफ़्ट साइड का सिर्फ। यहाँ पे देखो ये आप वर्टिकल एक्सिस लेंगे तो ये जो भी लेफ़्ट साइड है तो उतना ही यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ डेरिवेशन के लिए। ये हाफ सेक्शन है ये और ये लाइन डायग्राम है तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द डेरिवेशन, सो हियर आई वांट टू डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द पैरामीटर्स। यहाँ पे देखो हाइट ऑफ द गवर्नर एच। height of the governor is nothing but the vertical distance between center of the ball and the point where the upper arms are pivoted on the spindle। ये पॉइंट जहाँ पे अपर आर्म कनेक्टेड है स्पिंडल पे, ये पॉइंट से सेंटर ऑफ द बॉल का वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये सेंटर ऑफ द बॉल है, यहाँ ये सेंटर ऑफ द बॉल लाइन यहाँ पे लिया हुआ है एक्सटेंड करके। सो यहाँ से ये जो अपर आर्म जो यहाँ स्पिंडल पे कनेक्टेड है नहीं वो डिस्टेंस, ये दोनों का यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ना उसको हम हाइट ऑफ द गवर्नर बोलते हैं और यूजुअली इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एच। सिमिलरली रेडियस ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉल एंड द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल। यहाँ पे देखो ये सेंटर ऑफ द बॉल है और यहाँ पे एक्सिस ऑफ द स्पिंडल ये है। ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द गवर्नर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल एंड द vertical axis of the spindle. So that distance we called as a radius of rotation and it is denoted by small r, the distance between center of the ball and the vertical axis of the spindle, and it is denoted by small r. Okay, यहाँ पे मैं सेम डायग्राम जो बुक में था वही डायग्राम यहाँ पे नीटली निकाला हुआ हूँ। ओके, सो हियर this point I am considering it as a P and this point
this point I am considering is P, where the upper arms are connected on the spindle, and here this point D is the point on the sleeve where the lower arms are connected. ओके, यहाँ पे मैं ओनली हाफ सेक्शन लिया हूँ गवर्नर का. यहाँ पे देखो नो, यहाँ पे मैं हाफ सेक्शन कंसिडर किया हूँ गवर्नर का. तो यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स कंसिडर कर रहा हूँ. यम इज इक्वल टू मास ऑफ ईच बॉल इन केजी. ये स्मॉल एम जो है नी बॉल का मास है. नेक्स्ट डब्ल्यू इज़ नथिंग बट वेट ऑफ ईच बॉल इन न्यूटन्स. ये डब्ल्यू जो है नी स्मॉल डब्ल्यू है, ये बॉल का वेट है. मास इज डिफरेंट, वेट इज डिफरेंट. ओके, यू प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. mass is different, weight is different. Okay, and here mass weight can be written in terms of mass as W is equal to mass of the ball into gravity. This weight, ये जो weight है नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, small w is equal to m into g. ओके, यहाँ पे देखो m जो है बॉल का मास है और w जो है बॉल का वेट है. मास अलग होता है, वेट अलग होता है. और यहाँ पे देखो वेट को हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू जी, स्मॉल m इंटू जी. ये m जो है बॉल का मास है. ओके, नेक्स्ट सिमिलरली कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ द सेंट्रल लोड इन दी kg. यहाँ पे मैं बोला हूँ पोर्टर गवर्नर में स्लीव पे वेट डाले रहते हैं, लोड डाले रहते हैं. तो यहाँ पे जो स्लीव पे जो वेट डाले हैं उसको हम वेट डाले हैं, उसका जो मास जो है हम कैपिटल M करके लिए हैं, मास ऑफ द सेंट्रल लोड इन kg. ओके, तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आपको. यहाँ पे देखो ये जो सेंट्रल लोड है, ये जो सेंट्रल लोड है ना, यहाँ पे स्लीव पे अप्लाई किया हुआ है. यही वही उसको ही हम सेंट्रल लोड बोलते हैं. और सेंट्रल लोड को हम W करके लिए हैं. और उसका जो मास जो है ना, वो सेंट्रल लोड का जो मास जो है ना स्लीव पे है, इस पॉइंट पे D पे कैपिटल M करके लिए हैं. इस पॉइंट पे जो वो सेंट्रल लोड का जो मास है ना, M कैपिटल M करके लिए हैं. ओके, सो नेक्स्ट जो है W, दिस इज कैपिटल W. दिस कैपिटल W इज़ नथिंग बट वेट ऑफ द सेंट्रल लोड. ये जो यहाँ पे मैं अभी बताया ना, यहाँ पे स्लीव पे लोड रहता है, जो वो जो लोड जो है ना, उसको हम W करके लिए हैं. उसका वेट जो है हम W करके लिए हैं. सेंट्रल लोड पे जो वेट है उसका वेट जो है W करके लिए हैं. नेक्स्ट रेडियस ऑफ रोटेशन इन मीटर्स. यहाँ पे जो रेडियस ऑफ रोटेशन है स्मॉल r करके लिए हैं. और रेडियस ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉल एंड द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉल एंड एक्सिस ऑफ द स्पिंडल. दिस डिस्टेंस वी हैव टेकन इट एज स्मॉल r. नेक्स्ट हाइट ऑफ द गवर्नर इन मीटर्स. हाइट ऑफ द गवर्नर यहाँ पे मीटर में लिया हुआ है. हाइट ऑफ द गवर्नर इज नथिंग बट it is the vertical distance between center of the ball and the point where the upper arms are pivoted on the spindle. Once again I will repeat, height of the governor is nothing but it is the vertical distance between center of the ball and the point where the upper arms are pivoted on the spindle. Next, n is the speed of the balls in RPM. यहाँ पे गवर्नर जो है ना घूमते रहता है ना, तो उसका स्पीड जो है कैपिटल N करके लें. सो वंस यू फाइंड आउट N, सो सिंस दिस गवर्नर इज रोटेटिंग, ओके, गवर्नर इज रोटेटिंग, सो दिस स्पीड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड. ओके, ओमेगा वी हैव टेकन इट एज एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल्स इन रेडियन पर सेकेंड. And this omega can also be written as 2 pi n by 60 radian per second. यहाँ पे देखो नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल्स इन न्यूटन. सो यहाँ पे जब बॉल्स घूमते रहते हैं तो यहाँ पे बॉल्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होते रहता है. जब गवर्नर घूमते रहता है तो बॉल्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होते रहता है. तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम FC करके लें. एंड दिस FC कैन बी रिटन लाइक दिस.
this centrifugal force can be written as like this. This is the general formula of centrifugal force, mass into angular velocity square into radius of rotation. ये जनरल फार्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. यहाँ पे देखो बॉल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बॉल का मास लिए हैं, ओके, और उसका ही एंगुलर वेलोसिटी लिया और रेडियस ऑफ रोटेशन लिया. नेक्स्ट, T1 इज इक्वल टू फोर्स इन द आर्म इन न्यूटन्स. यहाँ पे देखो जब बॉल्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता रहता है तो यहाँ पे आर्म्स जो है ना, यहाँ पे फोर्सेस जनरेट होते हैं, आर्म्स में जो है ना फोर्सेस जनरेट होते हैं. यहाँ पे देखो T1 जो है अपर आर्म में फोर्स जनरेट होता है, ये इसको एक्चुअली टेंशन फोर्स बोलते हैं, इसलिए इसको T1 करके लिया हुआ है. तो यहाँ अपर आर्म जो है ना T1 फोर्स जनरेट होता है, और सिमिलरली लोअर आर्म में जो है ना T2 फोर्स जनरेट होता है. जब घूमते रहता है गवर्नर तो अपर आर्म में T1 करके फोर्स जनरेट होता है, लोअर आर्म में T2 करके फोर्स जनरेट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 इज इक्वल टू फोर्स इन द आर्म इन न्यूटन्स, T2 इज द फोर्स इन द लिंक इन द न्यूटन्स. यहाँ पे इसको हम आर्म करके बोलते हैं, यहाँ पे नीचे वाले को लिंक करके बोल सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो कॉल दिस आर्म एज अपर आर्म, यहाँ पे इसको हम लोअर आर्म करके बोल सकते हैं. नेक्स्ट, अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द आर्म टू द वर्टिकल एक्सिस. यहाँ पे जो है ना अपर आर्म जो है ना वर्टिकल एक्सिस के साथ अल्फा करके एंगल बनाया हुआ है, ओके. सिमिलरली ये लोअर आर्म जो है ना वर्टिकल एक्सिस के साथ बीटा करके एंगल बनाया है, वही यहाँ पे दिया हुआ है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द आर्म अपर आर्म टू द वर्टिकल एक्सिस अल्फा. नेक्स्ट, बीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लिंक, लोअर लिंक करके दिया हुआ है यहाँ पे, टू द वर्टिकल एक्सिस, ओके. सो दीज आर द टर्म्स और पैरामीटर्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन द डेरिवेशन. सो नो कंसिडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट डी. अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, पॉइंट डी पे फोर्स जो भी एक्ट करे उसको कंसिडर करता हूँ मैं. यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करता हूँ, डी पॉइंट जो है नी इट इज़ अंडर इक्विलिब्रियम. ये जो डी पॉइंट पे जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो होने दो, बट हम ये पॉइंट डी को हम इक्विलिब्रियम है करके कंसिडर करते हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ ये डी पॉइंट पे जो भी फोर्सेस एक्ट होते रहते हैं वो सभी फोर्सेस ऐड किए तो इक्वल टू ज़ीरो रहेगा. तो ये डी पॉइंट पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, W/2 एंड T2. यहाँ पे देखो डायरेक्शन T2 का डायरेक्शन जो है ऐसे डी पॉइंट की तरफ है, और यहाँ पे और एक फोर्स एक्ट हो रहा है W/2. तो यही वही यहाँ पे लिखा है, द पॉइंट D इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ W/2 एंड T2. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अंडर द एक्शन ऑफ अंडर डी पॉइंट इज अंडर इक्विलिब्रियम बोले तो सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट डी इज इक्वल टू ज़ीरो करके लेना है. तो यहाँ पे देखो पहले हम वर्टिकली इक्विलिब्रियम है करके कंसिडर करेंगे. ये डी पॉइंट जो है ना वर्टिकली इक्विलिब्रियम है करके कंसिडर करेंगे. इसका मतलब वर्टिकली जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो सभी वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करके इक्वल टू ज़ीरो करना है. तो यहाँ पे देखो वर्टिकल फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं. यहाँ पे मैं रफ डायग्राम एक फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ. यहाँ पे मैं रफ डायग्राम निकाला हूँ. ये जो पॉइंट डी, ये पॉइंट जो है डी है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट. यहाँ पे देखो डी पॉइंट पे यहाँ पे डाउनवर्ड W/2 फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वही लिखा हूँ W/2 डाउनवर्ड. यहाँ पे देखो T2 ऐसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं T2 जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे एक्ट कर रहा है T2 अपवर्ड, ओके. यहाँ पे देखो ये T2 जो है ना कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस के साथ, वो एंगल जो है बीटा है. T2 जो है एंगल बीटा वर्टिकल एक्सिस का बना हुआ है. तो ये जो T2 जो है ना इसके दो इफेक्ट रहेंगे, एक वर्टिकल रहेगा एक हॉरिजॉन्टल रहेगा. मींस एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा. यहाँ पे देखो पहले वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे. यहाँ पे देखो ये T2 का फोर्स जो है ना डायरेक्शन जो है ऊपर वाला है, तो यहाँ पे भी ऊपर आएगा. ये वर्टिकल डायरेक्शन का ये T2 का जो डायरेक्शन है ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पे भी जब आप ये फोर्स T2 रिजॉल्व करते हैं तो इसका डायरेक्शन ऊपर ही जाएगा. ये T2 को आप रिजॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे.
ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये जो T2 है पहले ऐसे T2 लिख दो। यहाँ पे देखो ये T2 जो है ना इस एक्सिस के साथ, ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बीटा बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कॉस फंक्शन लिखना है, कॉस बीटा। ओके, ये जो T2 है ना इसको हॉरिजॉन्टल भी रिजॉल्व करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल भी इसका इफेक्ट देखना है। तो यहाँ पे देखो T2 का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी बाहर ही जाएगा, मतलब ये पॉइंट से दूर जा रहा है तो इस पॉइंट से दूर ही आएगा इसका डायरेक्शन भी। तो यहाँ पे T2 पहले फोर्स लिखो। यहाँ पे देखो ये T2 फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कुछ एंगल आपको मालूम नहीं है, यहाँ पे साइन फंक्शन यूज़ करो और ये यही वाला एंगल यहाँ पे लिख दो, साइन बीटा। तो ये हो गया। आप यहाँ पे T2 को रिजॉल्व किए, T2 को हॉरिजॉन्टली भी रिजॉल्व किए, वर्टिकली भी रिजॉल्व किए। अभी यहाँ पे क्या करना है, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस। यहाँ पे अभी फोर्सेस रिजॉल्व हुए हैं। पहले आपको हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम है, पहले आपको वर्टिकली इक्विलिब्रियम है बनाना है, बाद में आपको हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम बनाना है। यहाँ पे देखो रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली, रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली। यहाँ पे देखो जो भी वर्टिकल फोर्सेस है ना उसको सभी को ऐड करना है और इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट डी इज़ अंडर इक्विलिब्रियम करके कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी वर्टिकल फोर्सेस हैं इस पॉइंट डी पे उसको ऐड करना है, इक्वल टू 0 करना है। और यहाँ पे ऐड करने के टाइम पे आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्सेस को नेगेटिव लेना है। इस पॉइंट डी पे अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस, मतलब ये पॉइंट से दूर जो भी जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लो और जो डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको नेगेटिव ले लो। यहाँ पे इस पॉइंट से जो भी फोर्स ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लो और जो भी इस पॉइंट से जो भी फोर्स नीचे जा रहा है उसको माइनस में ले लो। यहाँ पे देखो W/2 नीचे जा रहा है तो माइनस W/2। ओके, और कौन सा वर्टिकल फोर्स है यहाँ पे, और एक फोर्स जो है ये वाला है T2 cos बीटा, तो ये अपवर्ड जा रहा है तो प्लस T2 cos बीटा। यहाँ पे और कुछ वर्टिकल फोर्सेस नहीं है तो इक्वल टू 0 बना दो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है। T2 cos बीटा, अभी मैं W/2 को इधर लेता हूँ तो पॉजिटिव W/2 हो जाएगा। तो अभी यहाँ फिर नेक्स्ट क्या करता हूँ, T2 इज इक्वल टू W/2 cos बीटा। मैं cos बीटा को इधर राइट साइड में लिया हूँ। नेक्स्ट T2 इज इक्वल टू W बोले तो क्या लिए हम, W इज नथिंग बट, कैपिटल W इज नथिंग बट वेट ऑफ द सेंट्रल लोड ऑफ द स्लीव। तो यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू वेट ऑफ द सेंट्रल लोड। ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू G। तो वही यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, W के बदले में कैपिटल M इंटू G, 2 cos बीटा एज इट इज़ 2 cos बीटा। तो इसको इक्वेशन 1 करके लेता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या करना है, रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे डी पॉइंट पे आपको फोर्सेस हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही है। तो जब एक ही फोर्स एक्ट करता है तो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे हम रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंस देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल, सो वी कैन नॉट रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको इतना ही छोड़ दो। सो नेक्स्ट जो है अभी क्या करना है, सो नाउ कंसिडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पॉइंट बी। यहाँ पे अभी बी पॉइंट पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको कंसिडर करना है और उन सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करना है।
एक बार वर्टिकली रिजॉल्व करना है, एक बार हॉरिजॉन्टली करना है। तो पहले देखेंगे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं पॉइंट बी पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन मैं डायग्राम लेता हूँ। बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। बी पॉइंट पे देखो ये स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ द बॉल, ये एक्ट कर रहा है, ये लोड एक्ट कर रहा है, लोड ऑफ द बॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी एक्ट हो रहा है। नेक्स्ट T1 एक्ट कर रहा है, आर्म का फोर्स जो है T1 एक्ट कर रहा है इस पॉइंट बी पे। नेक्स्ट ये T1 जो है अपर आर्म का हुआ। ये जो नेक्स्ट T2 एक्ट कर रहा है, T2 एक्ट कर रहा है, ये जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ऐसे ये पॉइंट से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ओके, तो ये पॉइंट पे T2 लेते जब मैंने इस डायरेक्शन में ना है, ये पॉइंट पे T2 लेते जब मैंने ये डायरेक्शन में लेना है, ऐसे डायरेक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं टोटल इस पॉइंट बी पे? 4 फोर्सेस, W1, FC2, T1 3, T2 4, 4 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बी पॉइंट पे। तो ये यहाँ पे लिखा हूँ मैं, द पॉइंट बी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस: वेट ऑफ बॉल W, weight of ball W, centrifugal force FC, टेंशन इन अपर आर्म T1, टेंशन इन लोअर आर्म T2, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, बी पॉइंट पे फोर्सेस जो भी एक्ट कर रहे हैं, एक बार वर्टिकली रिजॉल्व करना है, एक बार हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है। तो उससे पहले जो यहाँ पे मैं देखो पॉइंट बी निकाला हूँ और पॉइंट बी पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं यहाँ पे निकाला हूँ। यहाँ पे देखो बी पॉइंट पे W, स्मॉल W, वेट ऑफ द बॉल एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी एक्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। जब बॉल घूमता है तो बॉल बाहर जाते हैं, गवर्नर्स घूमता है तो बॉल्स बाहर जाते हैं, तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का जो डायरेक्शन है बाहर निकाला हुआ है। सो नेक्स्ट यहाँ पे T1 जो है यहाँ पे कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है। T1 जो है यहाँ पे कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस के साथ, वो जो एंगल जो है अल्फ़ा है। T1 जो है वर्टिकल एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बनाया हुआ है। तो ये T1 को हम रिजॉल्व करना है, मतलब T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे T1 का। सो T1 का वर्टिकल कंपोनेंट जो है, पहले T1 एज इट इज़ लिखो। यहाँ पे देखो T1 जो है वर्टिकल एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना है, तो इसलिए यहाँ पे कॉस फंक्शन आएगा और एंगल जो है अल्फ़ा रहेगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रहेगा, कि T1 का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रहेगा। तो वो उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल इफेक्ट जो है ऐसे लिखते हैं हम, T1 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो T1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साथ उसका एंगल मालूम नहीं है, तो यहाँ पे साइन फंक्शन ले लो और ये यहाँ पे एंगल T1 का एंगल वर्टिकल के साथ मालूम है, वो एंगल यहाँ पे लिख दो। तो ये T1 का इफेक्ट जो है, ये जो है वर्टिकल इफेक्ट रहेगा और जो है ये हॉरिजॉन्टल इफेक्ट रहेगा। उसी तरह यहाँ पे देखो T2 भी है ना कुछ एंगल पे एक्ट करा है वर्टिकल लाइन के साथ, या आप वर्टिकल एक्सेस या वर्टिकल लाइन कंसिडर करेंगे तो ये T2 जो है ना वर्टिकल लाइन के साथ बीटा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो बीटा एंगल बनाया हुआ है बोले तो इसको T2 को हम रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। T2 का पहले यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे, मतलब वर्टिकल इफेक्ट देखेंगे। T2 का जो वर्टिकल इफेक्ट जो है ना यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखो ये जो T2 का डायरेक्शन जो है अब बी पॉइंट से दूर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी बी पॉइंट से दूर आएगा वर्टिकल कंपोनेंट का भी, ठीक है। यहाँ पे T2 फोर्स ऐसे लिख दो। ये T2 जो है ना ये एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाया हुआ है, तो इसको यहाँ पे कॉस फंक्शन यूज़ करो या और एंगल ये लिख दो बीटा, ठीक है। सिमिलरली T2 का भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही रहेगा, यही लाइन रहेगा। तो यहाँ पे मैं T2 का इफेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, T2 का इफेक्ट जो है ना यहाँ पे लिखता हूँ, T2 एज इट इज़ लिख दो। यहाँ पे देखो T2 जो है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल मालूम नहीं है, तो यहाँ पे साइन फंक्शन यूज़ करो। तो T2 का वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कितना है, बीटा है, तो वही यहाँ पे लिख दो। ये T1 साइन अल्फ़ा जो है T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये T2 साइन बीटा जो है T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इतना होने के बाद आपको फोर्सेस जो है ना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करना है। तो पहले मैं वर्टिकली रिजॉल्व करता हूँ, रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली।
यहाँ पे देखो जो जो भी वर्टिकल फोर्सेस हैं पॉइंट बी पे उसको ऐड करो और इक्वल टू 0 बनाओ। और यहाँ पे ऐड कैसे करना है बोले तो अपवर्ड फोर्सेस आपको पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड फोर्सेस आपको नेगेटिव लेना है। यहाँ पे देखो वो ये बी पॉइंट से जो भी वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस है उसको लिखो पहले। यहाँ पे देखो ये वर्टिकल फोर्स है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको पहले मैं लिखता हूँ T1 cos अल्फ़ा। और कुछ है वर्टिकल फोर्सेस, ये बी पॉइंट से ऊपर जा रहा है नहीं, तो नीचे वाले साइड आ जाओ आप। यहाँ पे देखो बी पॉइंट से नीचे में दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, W और T2 cos बीटा, और ये दोनों नीचे के डायरेक्शन में। तो पहले मैं ये लिखता हूँ -W क्योंकि ये नीचे आ रहा है। नेक्स्ट ये फोर्स लिखता हूँ -T2 cos बीटा। और कुछ डाउनवर्ड फोर्सेस हैं नहीं, तो इक्वल टू 0 लिख दो। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते जाता हूँ। T1 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल w है, और ये T2 cos बीटा, इसको मैं राइट साइड लिया और स्मॉल w को मैं राइट साइड लेता हूँ, स्मॉल w। ओके, अभी क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन वन जो था ना, ये वाला इक्वेशन T2 इज इक्वल टू mg/2 cos बीटा, तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ ये इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन अबव इक्वेशन, so T1 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू mg इंटू T2 बोले तो mg/2 cos बीटा इंटू cos बीटा प्लस स्मॉल w। यहाँ पे देखो cos बीटा cos बीटा कैंसिल हो जाएंगे, सो व्हाट इज लेफ्ट नो, T1 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू mg/2 प्लस स्मॉल w। ओके, सो T1 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल mg/2 प्लस स्मॉल w इज इक्वल टू, स्मॉल w इज नथिंग बट वेट ऑफ द बॉल। वेट ऑफ द बॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था मैं, वेट ऑफ द बॉल को स्मॉल m इंटू जी लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्मॉल m इंटू जी। सो आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज 2। ओके, अभी नेक्स्ट ये फोर्सेस जो है वर्टिकली रिजॉल्व हो गए। अभी हमको फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है। नाउ रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे अभी जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उसको ऐड करना है और इक्वल टू 0 बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट से जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, या राइट साइड में लो या लेफ्ट साइड में, सभी फोर्सेस को ऐड करना है, इक्वल टू 0 करना है। और यहाँ पे देखो ऐड करते जब है ना, राइट साइड फोर्सेस को पॉजिटिव में लो, और इस पॉइंट से जो भी फोर्सेस लेफ्ट साइड में जा रहे हैं उसको नेगेटिव में लो। ओके, ये बी पॉइंट से जो भी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली राइट साइड में जा रहे हैं उसको पॉजिटिव ले लो, और ई बी पॉइंट से जो भी फोर्स लेफ्ट साइड में जा रहे हैं उसको नेगेटिव ले लो। यहाँ पे मैं पहले जो भी फोर्सेस राइट साइड जा रहे हैं बी पॉइंट से हॉरिजॉन्टली, तो उसको लिखता हूँ। यहाँ पे देखो T1 साइन अल्फ़ा हॉरिजॉन्टली है, तो उसको पहले लिखता हूँ और उसको प्लस करके लेता हूँ क्योंकि ये राइट साइड में एक्ट कर T1 साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट फोर्स जो है T2 साइन बीटा, ये भी राइट साइड में एक्ट हो रहा है, तो इसको मैं प्लस T2 साइन बीटा। नेक्स्ट, और कुछ राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है फिर इन दोनों के अलावा। नेक्स्ट लेफ्ट साइड के फोर्सेस देखो, ये पॉइंट से लेफ्ट साइड में फोर्स है FC है, तो इसको मैं माइनस करके लेता हूँ क्योंकि वो लेफ्ट साइड में एक्ट हो रहा है। अभी क्या है, और कुछ फोर्सेस है लेफ्ट साइड में, कुछ नहीं, तो इक्वल टू 0 लिखते हैं, इक्वल टू 0। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे अगेन T2 को सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 1 क्या है, ये है T2 इज इक्वल टू mg/2 cos बीटा, यही यहाँ पे और सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन above equation, so T1 sin alpha plus
एम जी बाय 2 कॉस बीटा, ये सिर्फ मैं T2 को सब्स्टिट्यूट किया हूँ, इंटू साइन बीटा, ये T2 को सब्स्टिट्यूट किया और साइन बीटा एज इट इज़ लिख दो, माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0, माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट T1 साइन अल्फ़ा। ओके, अभी क्या करता हूँ मैं, सिंप्लीफाई करता हूँ, ये सभी टर्म्स को इस साइड में लेता हूँ, ये T1 साइन अल्फ़ा छोड़ के बाकी टर्म्स को इस साइड में लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, तो एफ सी प्लस एफ सी होगा। नेक्स्ट ये जो टर्म है माइनस होगा, माइनस एम जी बाय 2 कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं, T1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ सी माइनस एम इंटू जी बाय 2। यहाँ पे देखो साइन बीटा, यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा लिखता हूँ मैं, साइन बीटा बाय कॉस बीटा, यही इक्वेशन को मैं ऐसे लिखा हूँ। यहाँ पे देखो एक कॉस बीटा को इसके नीचे लिखा हूँ, साइन बीटा के नीचे, जस्ट रीअरेंज किया हूँ टर्म्स को। T1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ सी माइनस एम जी बाय 2 इंटू, यहाँ पे देखो साइन बीटा बाय कॉस बीटा इज नथिंग बट टैन बीटा, सो दिस इक्वेशन आई विल कॉल इट एज 3। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड टर्म्स जो है, लेफ्ट साइड जो भी टर्म्स है लेफ्ट साइड को ही डिवाइड करो, राइट साइड जो भी टर्म है उसको राइट साइड में ही डिवाइड करो। यहाँ पे देखो T1, पहले मैं इक्वेशन 3 लिखता हूँ, T1 साइन अल्फ़ा इक्वेशन 3 यही वाला, एफ सी माइनस एम जी बाय 2 इंटू टैन बीटा, ये इक्वेशन 3 हुआ। इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड में, इक्वेशन 2 के लेफ़्ट साइड में T1 बाय कॉस अल्फ़ा है, T1 कॉस अल्फ़ा है, तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड पे ही डिवाइड करता हूँ, डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे T1 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे राइट साइड सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड टर्म जो है वो टर्म जो है राइट साइड पे डिवाइड करो, ये वाला एम जी बाय 2 प्लस स्मॉल एम जी बाय 2 प्लस स्मॉल एम जी। तो अभी यहाँ देखो T1 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा क्या होगा, टैन अल्फ़ा होगा, एफ सी माइनस एम जी बाय 2 इंटू टैन बीटा होल डिवाइडेड बाय एम इंटू जी बाय 2 प्लस स्मॉल एम जी। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ये टर्म को यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेता हूँ, एम जी बाय 2 प्लस स्मॉल एम जी इंटू टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ सी माइनस एम जी बाय 2 इंटू टैन बीटा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, टैन अल्फ़ा को लेफ्ट साइड में लेता हूँ, सॉरी राइट साइड में लेता हूँ, इस टैन अल्फ़ा को मैं राइट साइड में लेता हूँ, एम जी बाय 2 प्लस स्मॉल एम जी एज इट इज़। अभी एफ सी बाय टैन अल्फ़ा माइनस एम जी बाय 2 इंटू टैन बीटा बाय टैन अल्फ़ा। ये जो टैन अल्फ़ा को है ना लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेता हूँ, तो यहाँ पे दो टर्म है, एफ सी और एम जी बाय 2 इंटू टैन बीटा, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो इसलिए टैन अल्फ़ा को इसको एक बार डिवाइड करना है और ये पूरे टर्म को एक बार डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे टैन अल्फ़ा इस साइड लिया तो क्या होता है, एफ सी बाय टैन अल्फ़ा
माइनस साइन है यहाँ पे दोनों के बीच में, माइनस साइन यहाँ पे दोनों के बीच में, तो वही माइनस साइन यहाँ पे है। mg/2 लिखा हूँ, और ये tan अल्फ़ा को ये टर्म को डिवाइड किया तो tan β/tan अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नाउ यहाँ पे मैं इक्वेशन आसान होने के लिए क्या करता हूँ, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan β/tan अल्फ़ा इज इक्वल टू q, and tan अल्फ़ा इज इक्वल टू r/h। ये r/h कैसा है बोले तो यू हैव टू सी द डायग्राम। यहाँ पे आपको डायग्राम यूज़ करना है, यहाँ पे आपको डायग्राम tan ये जो tan β/tan अल्फ़ा इज इक्वल टू q है नहीं, ये अज्यूम करना है, tan β/tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अज्यूम करना है। और tan अल्फ़ा इज इक्वल टू r/h जो है ना, ये डायग्राम से आया है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है। जब यहाँ पे tan फंक्शन यूज़ करते हैं, tan अल्फ़ा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। यहाँ पे देखो एंगल अल्फ़ा, यहाँ पे इसका अपोजिट साइड जो है ये वाला है, ये वाला है, और इसका डिस्टेंस जो है r है, स्मॉल r, तो वहीं यहाँ पे लिखा हूँ स्मॉल r डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये यहाँ पे ये ट्राइंगल ले लो आप, ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ये वाला PB और A पॉइंट, ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ मैं, PB A पॉइंट, ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है, एंगल अल्फ़ा आप यहाँ पे tan फंक्शन यूज़ करते हैं, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड जो है r है और एडजेसेंट जो है h है, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू r/h, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो है ना मैं यहाँ पे ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और वन मोर टर्म आई एम गोइंग टू यूज़ हियर, दैट इज FC इज इक्वल टू m⍵² इंटू r। सो ये भी हम स्टार्टिंग में मालूम है आपको, ये जो FC इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा, ये वाला, ये तीनों टर्म्स ये तीनों टर्म्स जो है ऊपर के इक्वेशन में अभी मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, mg/2, ये ऊपर का इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, mg/2 प्लस स्मॉल mg इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू ये वाला सब्स्टिट्यूट कीजिए, m⍵² इंटू r डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा इज नथिंग, यहाँ पे tan अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा के बदले में r/h, स्मॉल r/h, ओके, माइनस mg/2 एज इट इज़ लिखो, mg/2 एज इट इज़ इंटू tan β/tan अल्फ़ा इज इक्वल टू q लेना है, tan β/tan अल्फ़ा इज इक्वल टू q लेना है, तो यहाँ पे मैं इंटू q करके लिखता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट mg/2 प्लस m इंटू g। ठीक है, सो नाउ इस टर्म को, ये जो माइनस टर्म जो है ना, माइनस mg/2 इंटू q, इसको मैं इधर लेता हूँ लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको ये टर्म को इधर ले आते हैं लेफ़्ट साइड में, प्लस हो जाएगा, तो mg/2 इंटू q, ओके, सो दैट इज़ इक्वल टू ये वाला m⍵² इंटू r। तो यहाँ पे मैं टर्म्स को रीअरेंज करता हूँ, r/h है, तो इसको मैं रीअरेंज किया तो h/r, ये होल डिवाइडेड बाय r/h है, तो इसलिए इसको मैं रीअरेंज किया तो h/r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर वही इक्वेशन दोहराना है, वही इक्वेशन mg/2 ऊपर का इक्वेशन, स्मॉल mg प्लस mg/2 इंटू q इज इक्वल टू m⍵² ऊपर वाला इक्वेशन इंटू h। अभी क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, नाउ टेकिंग mg/2 as common on right side,
राइट साइड में जो है ना एम जी बाई टू को मैं कॉमन लेता हूँ, एम इंटू जी बाई टू कॉमन लिया तो यहाँ देखो इससे पहले मैं और क्या पहले क्या करता हूँ मैं, कॉमन लिया तो क्या होता है देखो यहाँ पे, उससे पहले और एक बार मैं इक्वेशन को सही से लिखता हूँ, यम इंटू जी बाई टू प्लस यम इंटू जी बाई टू इंटू क्यू प्लस यम जी स्मॉल एम जी इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे क्या किया मैं, इस टर्म को यहाँ पे लिखा, ये टर्म को यहाँ पे लिखा, वही यहाँ पे एम जी बाई टू ये टर्म को इधर लिखा, शिफ्ट किया तो आपको कॉमन लेने में आसानी होगी। नाउ टेकिंग एम कैपिटल एम इंटू जी बाई टू एज कॉमन ऑन राइट साइड, सो एम इंटू जी बाई टू कॉमन ले लो तो 1 प्लस यहाँ पे क्यू हो जाएगा, सो प्लस एम जी एज इट इज़, स्मॉल एम जी एज इट इज़, सो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एच। ओके, सो नाउ ये क्या हुआ, मैं अभी रीअरेंज करता हूँ, उसके ऊपर का इक्वेशन और एक बार सेम लिखता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे क्या किया मैं, एम जी बाई टू कॉमन लिया हूँ राइट साइड में, तो एम जी बाई टू कॉमन लेने के बाद क्या होता है, एम जी बाई टू 1, यहाँ पे क्यू है तो प्लस 1 प्लस क्यू, और एम जी एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज़। तो अभी मैं यही इक्वेशन रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, स्मॉल एम जी प्लस एम जी बाई टू इंटू 1 प्लस क्यू। ओके, सो अभी एच इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस एम जी बाय 2 इंटू 1 प्लस क्यू, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा हूँ। और ये जो टर्म है ना, ये एच छोड़ के ये दो टर्म जो है ना इंटू 1 बाय एम होल स्क्वायर, एच इज इक्वल टू, यही इक्वेशन रीअरेंज कराऊँ, एच इज इक्वल टू ये जो टर्म है राइट साइड में लिया तो ऐसे लिखे जा सकते हैं। तो अभी क्या करता हूँ मैं, टेकिंग जी एज कॉमन, taking G as common on left side. Okay, so H is equal to small m capital M by 2 1 plus Q whole square into G एम ओमेगा स्क्वायर। सो और इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, एच इज इक्वल टू एम प्लस एम बाई टू 1 प्लस क्यू इंटू, सो मैं ये एम है ना इसके नीचे लिखता हूँ, ठीक है, और जी बाय ओमेगा स्क्वायर करके लिखता हूँ, जी इधर लिया हूँ, दैट्स ऑल। सो दिस इक्वेशन आई विल कॉल इट एज 4। अभी क्या करता हूँ मैं, ये इक्वेशन को जो है ना ओमेगा के टर्म में लिखता हूँ, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखता हूँ। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा को इधर लेता हूँ, एच को नीचे लेता हूँ, एम प्लस कैपिटल एम बाई टू 1 प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई एम इंटू जी बाई एच। आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज 5। बट ओमेगा इज इक्वल टू, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60, ये स्टार्टिंग में हम लिख चुके हैं, स्टार्टिंग में ही मैं बता चुका हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60 रेडियंस, वही यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे जो है ना रिलेशन है स्पीड के इन टर्म्स ऑफ स्पीड फाइंड करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ओमेगा को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, 2 पाई एन डिवाइड बाई 60 होल स्क्वायर एम प्लस एम बाय 1 प्लस क्यू होल डिवाइड बाय स्मॉल एम इंटू जी बाई एच। हमको क्या करना है, मुझे क्या करना है,
ये इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ स्पीड लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूँगा। ये इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ स्पीड लिखना है, मतलब n स्क्वायर को इधर ही रख के बाकी के टर्म जो है ना राइट साइड में ले लो। तो यहाँ पे देखो n स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M बाय 2 1 प्लस q एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाय m इंटू g बाय h इंटू 60 बाय 2 पाई होल स्क्वायर। n स्क्वायर छोड़ के बाकी के टर्म इधर ले आऊँ, तो ये ऐसे लिखा जा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट n स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M बाय 2 1 प्लस q होल डिवाइड बाय स्मॉल m इंटू g बाय g का वैल्यू जो है ना g का वैल्यू जो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी g बोले तो ग्रेविटी, तो उसका वैल्यू मैं 9.81 करके लिया हूँ। सो h एज इट इज़ लिखता हूँ इंटू 60 डिवाइड बाय 2 पाई n होल स्क्वायर। यहाँ पे g का वैल्यू जो है ना 9.81 करके लिया हूँ, 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो वहीं यहाँ पे मैं g के बदले में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हूँ। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये और a 9.81 इंटू 60 बाय 2 पाई होल स्क्वायर, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा देखेंगे। यहाँ पे देखो ये 9.81 इंटू दिस टर्म किए तो 895 होता है, h एज इट इज़ लिख दो। ओके, सो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड द हाइट ऑफ द गवर्नर। ओके, अभी नेक्स्ट जो है, if you consider the friction in the governor, ओके, सो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन लिखना है आपका। अगर आप गवर्नर में कुछ फ्रिक्शन रोटेट हो रहा है बोले तो वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर आप वो फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो यही इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M बाय 1 m by 2 1 plus q whole divided by m. No, it's not like this. So you have to write like this, n square is equal to small m into g plus capital M into g plus or minus f whole divided by 2, and this entire term divided by m into by g, this into 1 plus q into 895 divided by h। ओके, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन लिखना है। अगर आप फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं, गवर्नर में फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको स्पीड का इक्वेशन ये यूज़ करना है। ओके, एंड यहाँ पे जब स्लीव अब ऊपर जा रहा है, स्लीव जो है ना स्पिंडल पे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस एफ लेना है। अगर आप स्लीव नीचे जा रहा है तो उसको हम माइनस एफ करके कंसिडर करना है, ठीक है। एंड द स्लीव मूव्स अपवर्ड, यू हैव टू टेक इट एज, या टेक एफ एज पॉजिटिव, एंड द स्लीव इज मूविंग डाउनवर्ड, यू हैव टू टेक इट एज माइनस। ओके, नाउ व्हेन, यहाँ पे देखो जब एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू एंगल बीटा हो जाता है, यहाँ पे एक्चुअली अल्फ़ा और बीटा सेम नहीं है। अगर जब एंगल अल्फ़ा और इज इक्वल टू एंगल बीटा हो जाता है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या क्या होंगे देखेंगे। व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, देन tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा है इज इक्वल टू क्यू है, ठीक है। दिस विल बिकम 1 बिकॉज यहाँ पे देखो tan अल्फ़ा इज इक्वल, सॉरी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है तो tan बीटा बाय tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है तो देन tan बीटा बाय tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू है। तो ये वैल्यू क्या हो, q का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है, मतलब
यहाँ पे आप अल्फ़ा के बदले में बीटा डाल भी तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इक्वेशन 6 क्या होगा देखेंगे, ये इक्वेशन 7, ये इक्वेशन को 7 करके लो। यहाँ पे नाउ when अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा देन q इज इक्वल टू 1, बिकॉज tan बीटा बाय tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू है। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा के बदले में बीटा डाले तो q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो नाउ तो ऐसा हुआ तो जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होता है तो q का वैल्यू 1 रहेगा, इतना याद रखो। जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा रहता है तो q का वैल्यू 1 रहेगा। तो इक्वेशन 6 क्या होता है देखेंगे, देन इक्वेशन 6 बिकम्स n स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m, सॉरी इंटू 895 बाय h, एंड इक्वेशन 7 बिकम्स n स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू g प्लस mg प्लस और माइनस f whole divided by m into g into 895 divided by h. Okay, you have to remember all these equations, and in the next lecture we are going to solve the problems on these formulae. Okay, thank you.